Hello, good evening to everyone. Today we shall discuss determinants of demand or factors influencing the demand. No doubt you know that price is the most important factor to influence the demand. But besides price, there are so many other factors. They are also going to affect the demand for a commodity. So we shall discuss all the determinants of demand. But remember one thing, price is the most important factor to influence the demand. So let us start the factors or determinants of demand. The first factor is price of the commodity. Price is the most important factor influencing demand for a commodity. Other things remaining same or constant उसको भी बोला जाता है सेटेरिस पेरिबस. सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग constant. So you can also write ceteris paribus. So other things remaining constant, there is inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. Price of a commodity and its quantity demanded. You know, it is a natural behavior of the consumer is that किसी भी चीज का प्राइस अगर कम होगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कम खरीदेंगे. दिस इज द वेरी नेचुरल थिंग फॉर द कंज्यूमर्स. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा. सो there is inverse relationship between price and demand. Second factor influencing demand is price of related goods. Related goods are of two types. दो प्रकार का related goods है. एक है substitute goods और दूसरा है complementary goods. You must have known what is substitute goods. Those goods which can be used in place of one another. एक commodity के बदले दूसरा commodity अगर हम यूज कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे substitute goods. So goods which can be used in place of one another for the satisfaction of a particular want are called substitute goods. एक commodity के बदले अगर हम दूसरा commodity यूज करते हैं to satisfy the same want को satisfy करने के लिए तो उसको हम बोलेंगे substitute goods. So we can take a very interesting example about cold drinks, Pepsi and Coke. पेप्सी नहीं मिलेगा तो हम कोक ले सकते हैं, कोक नहीं मिलेगा तो हम पेप्सी ले सकते हैं. तो पेप्सी एंड कोक आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. हियर व्हाट हैपेंस इफ प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस. If price of Pepsi rises, अगर पेप्सी का प्राइस ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो नाउ
व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड फॉर कोक? तो जब पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी कॉस्टली हो गया, पेप्सी बिकम्स कॉस्टली, सो the consumers will switch over to demand more of coke because price of coke has not changed. So if price of Pepsi rises, बढ़ गया, तो अभी कोक पेप्सी के तुलना से सस्ता है, इसीलिए डिमांड फॉर कोक will rise because they are substitute goods. अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी क्या हो गया? कॉस्टली हो गया, सो कंज्यूमर्स विल स्विच ओवर टू परचेज मोर एंड मोर कोक। एज ए रिजल्ट तो क्या होता है? डिमांड फॉर कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इधर क्या रिलेशन आया? जब पेप्सी का प्राइस बढ़ा, कोक का डिमांड भी बढ़ गया। दैट मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? एक चीज का प्राइस जब बढ़ जाता है, दूसरा चीज सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा चीज जो है उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हियर व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व? आवर डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड बिकॉज ऑफ direct relationship. Then come to complementary goods. I have already discussed in my earlier classes, previous classes. Complementary goods हम किसको बोलते हैं? Those goods used together to satisfy a particular want are called complementary goods. दो चीज एक साथ होने से हम हमारा वांट को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि जॉइंट डिमांड, टुगेदर डिमांड, उसको हम बोलेंगे। दो चीज एक साथ अगर नहीं होंगे तो हमारा वांट सेटिस्फाई नहीं होगा, वैसे चीज को हम बोलते हैं कंप्लीमेंटरी गुड्स। सो गुड्स used together to satisfy a particular want are called complementary goods. So I have taken an example here, petrol and bike. You know that suppose एक आदमी के पास पूरा चमचमाता हुआ बाइक है, लेकिन उसके पास पेट्रोल नहीं है, तो बाइक को चाटेगा क्या? बाइक रन करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसीलिए पेट्रोल और बाइक क्या गुड्स हुए? कंप्लीमेंटरी गुड्स हुई, क्योंकि बिना पेट्रोल बाइक चल नहीं सकता है। तो इधर क्या होगा? प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन लेट्स सी। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब पेट्रोल कॉस्टली हो गया, तो व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड फॉर बाइक? अगर पेट्रोल आज 102-104 रुपया में मिल रहा है, मान लो इसका रेट 200 रुपया और 250 रुपया हो गया पर लीटर, तो जो लोग बाइक चला रहे थे वो लोग कम करेंगे, यानी कि डिमांड फॉर बाइक will decrease. बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था?
एक चीज का प्राइस बढ़ जाने से दूसरा चीज का डिमांड भी बढ़ जाता था, लेकिन इधर क्या हो रहा है देखो, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स में क्या हो रहा है, एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो दूसरा चीज का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर there is inverse relationship between price of a commodity and quantity demand of its complementary goods. So in our example, petrol and bike are complementary goods. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो किसका डिमांड कम हो जाएगा, बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड फॉर बाइक। सो हियर आवर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नाउ कम टू number 3 point, income of the consumer. Income also influences the demand for a commodity, price remaining same. So income of the consumer generally ये देखा जाता है, there is direct relationship between income of the consumer and his demand. अगर ये भी नेचुरल है, अगर हमारा इनकम बढ़ते जाएगा तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। सो इट इज जनरल थिंग दैट, जनरल एजम्पशन दैट there is direct relationship between income of the consumer and his demand. But there are two types of goods, एक नॉर्मल गुड्स है और दूसरा है इंफीरियर गुड्स। ये दोनों गुड्स में रिलेशन अलग अलग होता है इनकम और डिमांड का। लेट अस सी, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स लाइक ब्रांडेड क्लॉथेस, बाइक, मिल्क, फ्रिज, टीवी, ये सब नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हम किसको बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स इसको बोलते हैं जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, जब इनकम कम होता है तो डिमांड कम होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में जैसे ब्रांडेड क्लॉथेस हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, स्मार्टफोन हुआ, एसी हुआ, ये है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, डिमांड राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम अगर हमारा बढ़ेगा, हम और ऑर्डिनरी क्लॉथेस नहीं पहनेंगे, हम कौन सा क्लॉथेस पहनेंगे, ब्रांडेड क्लॉथेस पहनेंगे, बड़ा बड़ा स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो मतलब अगर इनकम बढ़ता है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स राइजेस। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। समझ में आ गया। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, इंफीरियर गुड्स का मतलब जब इनकम बढ़ता है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है, और इनकम जब कम होता है डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स ज्यादा होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंफीरियर गुड्स हम किसको बोलेंगे, इंफीरियर का मतलब लो क्वालिटी फूड्स नहीं है, लेकिन ये भी फूड्स है, ये भी थिंग्स है, ये भी कंज्यूम करने का लायक है। जैसे कोर्स राइस एंड बासमती राइस। तो बासमती राइस हो गया हमारा नॉर्मल गुड्स,
कोर्स राइस हो गया हमारा इंफीरियर गुड्स। ब्रांडेड क्लॉथेस, नॉन ब्रांडेड क्लॉथेस। ब्रांडेड क्लॉथेस हो गया नॉर्मल गुड्स, नॉन ब्रांडेड क्या हो गया इंफीरियर गुड्स। तो हमारा इनकम जब बढ़ जाता है, हम किसको छोड़ देते हैं, नॉन ब्रांडेड को सब छोड़ देते हैं और ब्रांडेड के ऊपर चले जाते हैं। हमारा इनकम जब बढ़ता है, बासमती राइस का क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो किसका डिमांड घट जाएगा, कोर्स राइस, मोटा चावल जो रहता है, मोटा मोटा दाना वाला चावल, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारा इनकम बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर नॉन ब्रांडेड क्लॉथेस विल डिक्रीज। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, there is inverse relationship between income and quantity demand in case of inferior goods. So here I have written, in case of inferior goods, demand falls with the increase in income and vice versa, यानी कि demand rises with the fall in income. ये समझ में आ गया, वेरी क्लियर। सो नाउ वी शैल मूव टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रिफरेंस। तो चेंज इन टेस्ट, प्रिफरेंस, फैशन, हैबिट, कस्टम, ये सारे फैक्टर्स आल्सो हमारा डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखो मैं क्या बोला इधर, टेस्ट, फैशन, हैबिट, कस्टम, प्रिफरेंसेस एटसेट्रा डायरेक्टली हमारा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। They directly influence the demand for a commodity. Other things remaining same, अगर किसी भी चीज के ऊपर हमारा टेस्ट बढ़ गया, other things remaining same, as the taste of a commodity goes up, टेस्ट बढ़ गया तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा। फैशन बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रिफरेंसेस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स लाइक टेस्ट, प्रिफरेंस, हैबिट, कस्टम, फैशन, दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड। ओके, सो हियर चेंज इन टेस्ट, प्रिफरेंस, फैशन, हैबिट, कस्टम, ये डायरेक्टली हमारा डिमांड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यू मस्ट क्लियर। नाउ वी शैल स्विच ओवर टू पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, होप, आशा। अगर हमारा मन में फ्यूचर में, भविष्य में, नियर फ्यूचर में अगर प्राइस चेंज होने वाला है, ऐसा हमको एहसास हो गया, तो ये चीज भी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस, इफ पीपुल एक्सपेक्ट राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, हमारा सोच ये आ गया, हम होप किए नियर फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाला है।
आज जो प्राइस है कल उसका प्राइस और ज्यादा होगा, ये सोच आ गया तो क्या होगा? दे विल बाय और डिमांड मोर इवन एट हायर प्राइसेस एट प्रेजेंट। तो आज प्राइस मान लो ज्यादा भी है, लेकिन हम सोच लिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहा ये प्राइस कल और बढ़ेगा, तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आज खरीदने से हमको सस्ता पड़ेगा, कल खरीदने से क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। सो इफ पीपुल एक्सपेक्ट rise in prices of goods in future, they will demand more at higher, even at higher prices at present, and vice versa. Vice versa means उसका उल्टा। आज एक प्राइस का चीज कम है और हम सोच लिए, हम एक्सपेक्ट कर लिए प्राइस और घटेगा, तो आज प्राइस कम भी होने से भी हमारा डिमांड क्या होगा? डिमांड भी कम होगा, क्योंकि कल जब और सस्ता होगा तो हमको और सस्ता में मिलेगा, तब जाके हम ज्यादा डिमांड करेंगे। इसीलिए हियर क्या रिलेशन आता है? प्राइस और डिमांड के बीच डायरेक्ट, हेंस देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड in case of expectation। in case of expectation, अगर हमारे मन में, हमारा सोच में अगर प्राइस चेंज होने का सोच आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गया, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड डिमांड का स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू right. Are you clear? This is one of the most important point influencing demand, that is expectation of future changes in prices. Number 6, size and composition of population। population का size और composition भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है डायरेक्टली। इट इज नेचुरल, इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो डिमांड फॉर फूड्स, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। बिकॉज वेन एवर ए बेबी इज बॉर्न, इमीडिएटली हिज माउथ इज ओपन, मेरे को खाना दो, आई वांट फूड। सो इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ in a faster way, like in India, demand for goods and services will also go on rising। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, उनको फूड चाहिए, उनको क्लॉथेस चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो डिमांड बढ़ेगा। और पॉपुलेशन अगर कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। तो डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये खाली साइज के ऊपर निर्भर नहीं होता है डिमांड, ये कंपोजिशन के ऊपर भी निर्भर होता है। इफ नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज, फीमेल का संख्या बहुत हो गया एक कंट्री में, तो क्या हो जाएगा? डिमांड फॉर कॉस्मेटिक्स, डिमांड फॉर साड़ीज एटसेट्रा विल ऑल्सो increase। So our demand is influenced or affected by the size and composition of population, and here there is a direct relationship between
population and demand. Next point 7, season and weather. Season and weather also influences the demand. You know, during winter, demand for woolen clothes increases. So now it is a winter season. There is heavy cold wave, so demand for woolen clothes increases. Similarly, when time changes to rainy season, similarly demand for raincoat and umbrella increases during rainy season. तब जब सीजन बदलता है, वेदर कंडीशन चेंज होता है, तो हमारा डिमांड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जातीय आय. तो अलग अलग कंट्री में नेशनल इनकम अलग अलग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम and another is inequitable distribution of income. So what is distribution, what is equitable distribution of national income or income of a country, and what is inequitable distribution of income in a country. equitable distribution of income हम इसको बोलेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेयर होगा, पातर अंतर नहीं होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होगा, यानी कि रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का होगा. सबके पास एक रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा, उसको हम बोलेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. व्हाट इज इनइक्विटेबल? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है जब ज्यादा से ज्यादा इनकम कम लोगों के हाथ रह जाता है. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इनकम लाइज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एंड बाकी इनकम ज्यादा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसका मतलब अगर कंट्री में बहुत कम लोग रीच रहेंगे और बहुत ज्यादा लोग क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे, उसको हम बोलेंगे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबके पास कुछ ना कुछ इनकम होता है, रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड होता है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम होता है. तो उस टाइम डिमांड क्या होता है. और जब इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल मीन्स व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ income and wealth in the hands of few and others are poor, यानी कि रिच कम रहेंगे और गरीब ज्यादा रहेंगे, उसको हम बोलेंगे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री. तो जब if there is equitable distribution of income in a country, what would happen to demand? Demand increases, demand will increase. क्योंकि मैं अभी तुमको बताया जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, लोगों के पास रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, सबके पास कुछ ना कुछ इनकम रहता है, इसीलिए
इन टोटल क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, डिमांड फॉल्स इफ देयर इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री। अगर एक कंट्री में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ज्यादा लोग क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम कम रहेगा क्योंकि इनकम कम है, और बहुत सारे पैसे, बहुत सारे इनकम फ्यू के हाथ में रह जाएगा, वो लोग बहुत रिच रहेंगे। तो इसमें इन टोटल क्या होगा, डिमांड, गरीब लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, खाली रिच आदमी ज्यादा डिमांड कर पाएंगे। तो इन टोटल ऑन एन एवरेज, औसत अगर हम देखेंगे तो डिमांड विल फॉल। सो इन केस ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री, डिमांड विल फॉल, बट इन केस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिमांड विल राइज। समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट हो गया स्टेट ऑफ बिजनेस, इसको भी बोला जाता है ट्रेड साइकिल। देयर आर 4 stages in the trade cycle. You can see the diagram below here. This is a diagram for trade cycle. There are 4 phases. Look at this point. This is called depression or doom. डिप्रेशन और डूम का मतलब होता है एवरीथिंग इज लो, प्राइस बोलो, इनकम बोलो, डिमांड बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलो, सब कुछ डार्क जब रहता है। 1930 में अगर तुमको पता है, देयर वाज ए ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए में। आज वो नंबर 1 कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। जब इकोनॉमी ठप हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस, डिमांड, प्रोडक्शन, सप्लाई, एवरीथिंग बिकम्स लो एट ए वेरी लो लेवल, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन और डूम, डार्केस्ट पीरियड ऑफ द इकोनॉमी। और जब इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, धीरे धीरे लोगों का इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे रिकवरी पीरियड। एंड थर्ड स्टेज इज बूम और प्रॉस्पेरिटी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाईएस्ट पॉइंट में रहता है, सैचुरेशन पॉइंट में रहता है, जैसे आजकल अमेरिका का, वो है बूम और प्रॉस्पेरिटी पीरियड। हियर एवरीथिंग इज हाई, प्रोडक्शन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यहां कुछ भी बिकता है, बिकॉज it is a period of boom or prosperity. Then there is a period when economic development again comes down. It is a case of recession. जब रिसेशन होगा, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनफॉल हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ बिजनेस इसको बोला जाता है। तो हमारा बिजनेस कौन सा पीरियड में है, उसी हिसाब से हमारा डिमांड भी चेंजेस होता है। तो इफ देयर इज बूम पीरियड, अगर हमारा बिजनेस कौन सा पीरियड में है, बूम पीरियड में है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग। सो बूम पीरियड में क्या होगा, सबके पास
ज्यादा से ज्यादा इनकम रहता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं, तो डिमांड, मार्केट डिमांड विल राइज। However, during the period of depression, अगर हमारा बिजनेस कहाँ है, डिप्रेशन या डूम पीरियड में है, मैं पहले से बता रखा हूं, डूम पीरियड, दिस इज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द इकोनॉमी, सब कुछ लो रहता है, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल गो डाउन। रिकवरी पीरियड में डिमांड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। रिसेशन पीरियड में डिमांड क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड 9 points in total to explain their effect on demand. So these are the 9 points, 9 determinants to influence the demand. So you must be clear, हर एक पॉइंट में मैं डिटेल तुम लोगों को समझाया हूं। आई थिंक you must be clear about these 9 points. So, my dear students, this much for today. Thank you all. In the next class, we shall continue with the law of demand, one of the most famous laws in the theory of economics. So, till then, goodbye.